Hi, welcome to our full stack .NET development series. In this series, we are going to learn basic of .NET to advanced level of programming, as well as we will follow the industrial way of programming. We will also develop desktop applications as well as web applications, and also host the web application to server. We will discuss the most likely interview questions for beginner as well as experienced person. We will use English as well as Hindi language for this series. So let's begin. This is the part first of our basic of programming and introduction to .NET. In this tutorial, we are going to discuss the topics that are what is platform, platform dependency, platform independency, and next one is what is .NET. So our first topic is what is platform. It is an environment under which an application executes. Or we can say platform is an combination of microprocessor and operating system. So basically जो प्लेटफॉर्म है वो एक माहौल हमें देता है हमारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। जैसे कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा विंडोज़ 10 है जिसके अंदर हम पावर पॉइंट, एक्सेल, MS ऑफिस, क्रोम ब्राउज़र, एडोब रीडर ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 10 के अंदर हम रन करते हैं. So there are two types of applications. One is platform dependent applications and another one is platform independent applications. So first one is platform dependent applications. Applications that are developed targeting any particular operating system are platform dependent applications. These applications, when developed on a platform, can't run on other platform. So we are going to take one example for this. So this is the source code which is written by C language, and C language is a platform dependent language. Okay, so if we write this source code in Windows operating system, then it will only work on Windows operating system. If we write this source code in Linux operating system, then only it will work for Linux operating system. If we write this code for Mac, then only it will work in Mac operating system. Means जब हम हमारा source code प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस से लिखते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज, तो फिर ये उसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है. जैसे अगर हमने ये हमारा सोर्स कोड विंडोज़ में लिखा तो ये सिर्फ विंडोज़ में रन होगा, लाइनक्स में लिखा तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा, और मैक में लिखा तो सिर्फ मैक में ही रन हो सकता है ना. सो हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. ये एक चाइनीज़ पर्सन है, अरबिक पर्सन है और मराठी पर्सन है. तो जैसे कि चाइनीज़ पर्सन को अरबिक समझ में नहीं आएगी और अरबिक को मराठी समझ में नहीं आएगी, उसी तरह से ये है कि हमारा जब सोर्स कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. जैसे हमारा सोर्स कोड चाइनीज़ में कन्वर्ट हो गया, हमारा सोर्स कोड अरबिक में कन्वर्ट हो गया, हमारा सोर्स कोड मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज में अब ये कन्वर्ट हो गया, ये मराठी पर्सन को समझ में नहीं आएगा. इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है कि हमारा सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा मशीन कोड होता है. ये हमारा विंडोज़ के लिए .exe जैसे कि हमारा होता है, तो इसमें ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए ना तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता है और हम उसे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकते. So our next one is, this is the architecture. Source code compiled by language compiler, converted into machine code, and it is platform dependent. Next topic is what are the platform dependent languages. तो कौन कौन सी platform dependent languages है? C++, Visual Basic, COBOL, Pascal, Fortran,
ये कुछ एग्जांपल्स है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस के। ये अर्ली डेज में होते थे 1960s में, जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी ज़्यादा, तो उसमें ये सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस थे। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सो applications that are not developed targeting any particular operating system, or we can say the applications that run on multiple operating system are platform independent applications. Its motto is write once run anywhere. जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना बनाई गई हो, उसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस कहते हैं, जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी रन हो सके। इनका मोटो भी यही है कि राइट वंस, एक बार लिखो और बार बार उसे यूज़ करो। तो इसके एग्जांपल्स है लैंग्वेजेस के जावा, .NET, पाइथन एक्सेट्रा। वी कैन यूज़ दिस लैंग्वेज टू डेवलप द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस। सो टेक अ लुक ऑन द इस आर्किटेक्चर। Assume the source code we written in .NET language, we compile it by C# compiler, then it will give us the IL code, or we can say MSIL code. This code is intermediate code. Now when we want to install our application on client machine, then we will copy this code and take to our client machine, maybe it's Windows, Linux or Mac. Then in the client machine we have to install the .NET framework. In the .NET framework there is one component known as CLR, that is Common Language Runtime, which will convert the IL code into machine native code and execute it there. Okay, so मान लीजिए कि हमारा जो सोर्स कोड है हमने C# में या .NET में लिखा है, ठीक है। तो C# में ये हमारा कोड है, तो हम इसे लैंग्वेज कंपाइलर मतलब CSC से कंपाइल कर लेते हैं, तो हमें ये IL कोड या MSIL कोड दे देता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड और माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो ये जो MSIL कोड है वो हम विंडोज़ में भी, लाइनक्स में भी और मैक OS में हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है। ये जो IL कोड है हम इसे कॉपी करते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इंस्टॉल करना है। ये क्लाइंट मशीन है तो हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क के अंदर एक कंपोनेंट है CLR, दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो CLR IL कोड को मशीन नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये जो हमारा इंटरमीडिएट कोड है उसे वो मशीन नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये हमारा सोर्स कोड है जिसे हम C# लैंग्वेज में लिखे, ठीक है, .NET में C#। यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज फ्रॉम .NET फ्रेमवर्क और जावा और एनी अदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सो जब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं तो हमें IL कोड दे देता है, ये इंटरमीडिएट कोड होता है, ठीक है। तो अब ये हम एग्जांपल लेते हैं कि विंडोज़ मशीन है तो इसमें ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं CLR और .NEट फ्रेमवर्क की मदद से। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये विंडोज़ जो है ये चाइनीज़ पर्सन है, ये मराठी पर्सन है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन में वो मशीन नेटिव, डायरेक्टली मशीन नेटिव कोड जनरेट करता है। जैसे कि इससे सोर्स कोड डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव कोड में जनरेट होता है, बट इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर में सोर्स कोड एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है। सो इंटरमीडिएट कोड हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। मान लीजिए यह हमारा इंटरमीडिएट कोड है इंग्लिश, इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके सपोज। तो इंग्लिश लैंग्वेज आजकल तो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब समझ लीजिए कि चाइनीज़ पर्सन भी इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकता है, ओके। अरबिक पर्सन भी इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और मैक पर्सन भी इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर है। जो ये MSIL कोड है या तो और ये अंडरस्टैंड प्रोसेस के लिए हमें एक ट्रांसलेटर लगता है, उसी तरह से इसमें हमारे CLR जो है
.NET फ्रेमवर्क के अंदर वो हमें ट्रांसलेटर का काम कर देता है, वो हमारा IL कोड को मशीन नेटिव और ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। Okay, this is the difference in dependent languages and independent languages. C, C++, etc. all are the dependent languages. This is operating system. Okay, this is operating system. Here we have in suppose it is Windows, so here we directly install the our application, that is machine code, and we call it as unmanaged apps because it directly interact with operating system. The applications that directly run under OS are known as unmanaged apps. So another one is independent applications, that is .NET languages or any Java language, etc. Then in independent architecture, this is our operating system. Suppose it's Windows, under that it is our .NET framework, and inside the .NET framework our develop application will run here with the help of CLR. So managed apps, applications that run under .NET framework are known as unmanaged apps. So basically dependent आर्किटेक्चर में हमारी जो भी एप्लीकेशन हम डेवलप किए, जैसे कि हम सी या C++ में एक एप्लीकेशन डेवलप किए, वो डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होते हैं। जैसे कि हमारा क्रोम ब्राउज़र है या कोई और सॉफ्टवेयर है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट होता है और डायरेक्टली रन होता है, जिसे हम अनमैनेज ऐप्स कहते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस में हमारे जो भी एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे .NET फ्रेमवर्क से इंटरैक्ट करेंगे। अगर उन्हें कोई रिसोर्सेज चाहिए तो वो हमारे .NEट फ्रेमवर्क को कंसल्ट करेंगे और .NEट फ्रेमवर्क देन ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा। तो ऑल द एप्लीकेशंस दैट आर रन अंडर .NEट फ्रेमवर्क आर मैनेज एप्स। So next one is, what is machine code? The machine code is that which we install on client machine, and the machine code is always prepared targeting operating system, because operating system is responsible to run the machine code. So machine code prepared for one operating system will not run on other operating system. तो machine code जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटिव कोड होता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज में लिखा हुआ वो कोड होता है। जैसे कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं 1010 फॉर्मेट में, तो उसमें वो कोड होता है लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे विंडोज़ के लिए .exe फॉर्मेट होता है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए .apk फॉर्मेट होता है, तो ये वही होता है मशीन कोड। सो नेक्स्ट वन इज़, व्हाट इज़ .NET? So .NET, it is a product of Microsoft which is used for building platform independent, means portable and object oriented, which provide us security and reusability applications like desktop applications, in this character user interface, also graphical user interface, web applications and mobile applications. So .NET एक Microsoft का प्रोडक्ट है जो हम पोर्टेबल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। .NET की मदद से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिसमें CUI प्लस GUI, मतलब जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, CMD टाइप प्लस GUI एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं उसमें। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। उसी तरह से हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। इसी के साथ आपको अगर कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट में हमसे इंटरेक्ट कीजिए।